take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Consequence, some be feeling competent. Mental health is confidence, straight into modestness. That's for me to take away. I could play a million long games, but instead of six, something not illogical, something not as topical. Get it on and let you go. Make yourself unstoppable, be irresponsible, but the world is possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बेलपत्र के नीचे दीपक जलाना और जल चढ़ाना का बहुत भी महत्व है, तो इसीलिए सभी लोग आ रहे थे अपने घरों से। तो देखिए कितना अच्छा सा, कितनी शांति है। और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स के बोलने की आवाज़ें आती हैं। पार्क में, जो मंदिर के साथ में पार्क है, इसमें सभी पूजा के हिसाब से पेड़ पौधे लगे हैं, बेलपत्र, पीपल और बड़ का। अब मैं आ गई हूँ अपने घर में। यहाँ पे निकली बहुत अच्छी सी धूप, तो मैंने धोया था सर, तो इसलिए मेरे को धूप में बैठने का मन था। तो जब मेरे को सुबह सुबह टाइम मिलता है, मैं अपनी गार्डनिंग में ऐसे काम कर लेती हूँ। मैं अपने पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखती हूँ। और मैं ले आई थी खाद, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले अभी अपने पेड़ों में थोड़ा थोड़ा सा खाद मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि सर्दी के जाने के बाद सारी तुलसियाँ मर चुकी थी और पेड़ पौधों की हालत ख़राब हो चुकी थी। जैसे हमें ठंड लगती है तो पेड़ पौधों को भी बहुत ठंड लगती है। तो अब मैं फटाफट से सारे जितने भी जो मेरे गमले थे उनमें थोड़ा थोड़ा सा खाद ऐड कर रही थी। और खुदाई करके उसमें थोड़ा सा मैं मिट्टी अलग निकाल देती हूँ, और मिट्टी निकाल के मैंने अलग उसमें डाल दी थी डब्बे में, और ऊपर से मैं उसी जगह में मैं डाल रही थी खाद। तो इससे हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन्हें अच्छा सा खाद इनमें ज़रूरी है देना, और इससे ये ठीक भी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो इसलिए टाइम के टाइम हमें अपने पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और दिन में हो रही है बहुत ही ज़्यादा धूप, तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि अंदर जाते तो ठंड लगती है और बाहर आते हैं तो गर्मी लगती है। तो सेम बेचारे पेड़ पौधों तो ये तो बता भी नहीं सकते। तो मुझे तो अपने पेड़ पौधों की रहती है बहुत ही चिंता, और मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अपने पेड़ पौधों की। तो इस तरीके से मैंने सारे पेड़ पौधों में खाद दिया, और इनमें खुदाई करी, गुड़ाई करी, और जो इनमें जैसे पत्ते सूख जाते हैं उनको मैं अच्छे तरीके से हटा देती हूँ।
और अच्छे तरीके से अपने गार्डन को मैं कर देती हूँ बिल्कुल फ्रेश। इस बार देखिए मैंने ये देखिए कितना अच्छा सा मेरे टमाटर का पौधा लगा है। तो घर में अगर आपके कोई टमाटर ख़राब हो जाता है, अगर आप उसको वैसे ही फोड़ के अपने गमलों में डाल देते हैं तो अच्छे से हमें बीज लाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से टमाटर के पौधे निकल आते हैं। तो मेरे इस तरीके से देखिए कितना बड़ा सा टमाटर का पेड़ हो गया है। तो मैंने इसमें भी फटाफट से डाल दिया खाद और कड़ी पत्ते में भी डाल दिया। तो इस तरीके से मैं अपने पेड़ पौधों का रखती हूँ बहुत ही ख्याल। तो सभी को अपने पेड़ पौधों की केयर ज़रूर करनी चाहिए। और ये देखिए कितनी प्यारी सी बटरफ्लाई आ गई है हमारे नींबू के पेड़ के ऊपर। इतनी प्यारी सी बटरफ्लाई है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए इसको दिखाती हूँ मैं आपको जूम करके। ये देखिए कितनी अच्छी सी बटरफ्लाई है, देखा आपने। ये कड़ी पत्ते पे आ रही है बार बार, कभी गुड़हल के पेड़ पे जाती है, कभी नींबू के पेड़ पे जाती है, और कभी आती है कड़ी पत्ते के पेड़ के ऊपर। और ये लगे हैं मेरे फ्लावर्स जिनके सब पूजा के लिए तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चलो भगवान पे सबके काम आ रहे हैं, भगवान पे चढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो साथ ही साथ हम आ गए हैं किचन में। मैंने ले लेते बहुत सारे 1 किलो के करीब आमले। इनको ये सर्दियों में ही मिलते हैं, तो इनको मैं रखूँगी स्टोर करके। तो किसी ने पूछा था कैसे स्टोर करके रखते हैं, तो इनको स्टोर करके देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है और ढेर सारे आमले हमारे तैयार हो गए। इनको मैं सुखा दूँगी धूप में। आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़र में भी रख सकते हैं किसी पन्नी में फोल्ड कर, लेकिन मैं इन्हें धूप में सुखाऊँगी। इनका पाउडर बना सकते हैं या आप इन्हें ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आमलों को अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया और इनको मैं सुखाऊंगी धूप में। क्योंकि जब भी मैं शैम्पू करती हूँ थोड़ा सा पानी में उसको बॉईल कर लेती हूँ, तो हमारा जो शैम्पू है अगर चाहे वो और वो हमारा जो शैम्पू ऑर्गेनिक काम करता है। और इस तरीके से हमारे जो बाल हैं उनमें मतलब बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाता है, वो सिल्की से भी आते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पूरे दिन की बातें आपके साथ शेयर करी। मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।